Assalamualaikum dear students, this is International Islamic University Islamabad Schools Sahiwal campus online lectures grade 7 science lecture number 6 unit number 3 fiber from animals. Students, bring your science book and notebook, open it and write date and day properly. Listen to your teacher attentively and mark all the important points said by the teacher on your book. Dear students, in this lecture we are going to discuss exercise of your lesson number 3 fiber to fabric, and we are going to do task B at first. Task A is multiple choice questions that you have to do by yourselves on your books, page number 31. Now we are going to move on task B. Name the following. आपने अब यहाँ पर एक आपके पास स्टेटमेंट दी गई है, आपने उस स्टेटमेंट को एक स्पेसिफिक टर्म जो है वो राइट करनी है, उसको एक स्पेसिफिक टर्म नेम देना है. सो स्टेटमेंट नंबर 1 इज़ दैट द रेजिंग ऑफ सिल्क वर्म इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सिल्क इज़ सेरिकल्चर. द प्रोसेस ऑफ कटिंग वूल ऑफ अ शीप, जो वूल उतारी जाती है शीप की बॉडी से, उसकी स्किन से, उसको हम क्या कहते हैं? शेयरिंग. द स्टेटमेंट नंबर 3 इज़ दैट protective shield of silk fiber made by silk moth is a cocoon. Statement number 4, obtaining silk from cocoon is a specific process and a specific term is used, that is reeling. Statement number 5, divide the wool as per its quality is known as sorting. So these are basically the terms that are used for these sentences. Specific terms are used for these scientific methods. Now we are going to do task C. Answer these questions as short answers. Question number 1 is name the two different types of fleece. दो different type of fleece के अपने नेम राइट करने हैं जो कि हम sheep से obtain करते हैं. Answer is that it is of two types. One is soft under hair part which is close to skin and other is hard upper part. यानी शीप का जो हेयर होता है उसका जो स्किन के बिल्कुल क्लोज पार्ट होता है वो सॉफ्ट हेयर होता है और वो सॉफ्ट फ्लीस बनाता है, और जो उसका अपर पार्ट होता है वो हार्ड हेयर होता है और वो हार्ड फ्लीस बनाता है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फैब्रिक. फैब्रिक से आपको क्या चीज़ आपके माइंड में आती है, आप इससे क्या अंडरस्टैंड करते हैं? फैब्रिक इज़ अ मटीरियल दैट इज़ यूज टू मेक क्लोथ्स. फैब्रिक ऐसे मटीरियल को कहा जाता है जिसके ज़रिए से हम कपड़ा बना सकते हैं. वाई सिल्क इज़ रिगार्डेड एज एन एक्सपेंसिव फाइबर. सिल्क को एक्सपेंसिव फाइबर क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट हैज़ अ शाइन लस्टर दैट अदर फैब्रिक्स डू नॉट हैव, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज अ एक्सपेंसिव फाइबर. Question number 4, what is shearing? We have discussed now that the process of cutting wool of a sheep is called as shearing. यानी जो वूल की बॉडी से शीप की बॉडी से जो वूल उतारने का प्रोसेस होता है उसको हम शेयरिंग कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, नेम द स्टेप्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग वूल. वूल को एक्सट्रैक्ट करने के दो स्टेप्स जो हैं उनके नेम राइट करना है, यानी वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं शेयरिंग से लेकर इसकी प्रोडक्शन तक. सबसे फर्स्ट हमारे पास मेथड है शेयरिंग, यानी कि द प्रोसेस ऑफ कटिंग वूल ऑफ अ शीप. देन इज स्कोरिंग. स्कोरिंग इज़ बेसिकली अ स्पेसिफिक टर्म यूज्ड for the method in which we involve washing the sheared wool thoroughly with soapy water to remove all the unwanted greasy material. ठीक है, तो greasy material को wash करने के लिए जो हम step लेते हैं that is scoring. And then sorting. Sorting is basically graduated term used for wool division. यानी wool को उसकी quality wise ग्रेडिंग की जाती है, उसको सेपरेट रखा जाता है, क्लासीफाई किया जाता है. इस प्रोसेस को हम सॉर्टिंग कहते हैं. नेक्स्ट इज कॉम्बिंग. वूल फाइबर को कॉम्बिंग करना उसकी ताकि उसको अलाइन किया जा सके. एंड देन मेकिंग यार्न, धागा बुनना. क्वेश्चन नंबर 6, नेम 2 प्लांट्स फाइबर एंड 2 एनिमल फाइबर्स. सो यू हैव लर्न अबाउट इट. प्लांट फाइबर कैन बी कॉटन एंड जूट एंड एनिमल फाइबर कुड बी द वूल एंड silk. Question number 7, write a short note on angora wool. We have discussed about it in the previous lecture in detail that what is angora wool. This is obtained from angora goats or rabbits found in hilly regions. यानी hilly regions में जो angora goats होती हैं, जो rabbits होते हैं, उनकी skin से इसको लिया जाता है. It is very soft, warm and fluffy. इसके characteristics क्या हैं? ये बहुत ज़्यादा warm होती है, soft होती है और
फ्लफ़ी होती है। Next is question number 8. What is cocoon? How it is formed? So a cocoon is a shell in which caterpillar change its pupa. Cocoon is formed when silkworm molds itself through 4 changes of their skin. यानी cocoon एक shell है in which caterpillar change its pupa. यानी basically ये वो stage है जब caterpillar प्यूपल स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है एंड इज़ फॉर्म्ड व्हेन सिल्कवर्म मोल्ड इटसेल्फ थ्रू 4 चेंजेस ऑफ देयर स्किन। और अब ये कोकोन डेवलप कब होगा, स्किल कब प्रोड्यूस होगी, जब सिल्कवर्म अपनी 4 जो चेंजेस हैं, मोल्डिंग स्टेजेस हैं, उनसे गुजरता है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज़ लार्वा? लार्वा क्या है? गिव एन एग्जाम्पल फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ एनिमल फाइबर। लार्वा इज़ द बेबी दैट हैचेस फ्रॉम एग, यानी वो एक छोटा इंडिविजुअल जो कि एग से हैच होता है, एग से निकलता है, उसको हम लार्वा कहते हैं। एंड सिल्क वर्म गोट शीप। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, गिव एन एग्जाम्पल फ्रॉम द सोर्स ऑफ एनिमल फाइबर। अब यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स हमने दिए हैं, एक सिल्कवर्म है, एक गोट है और एक शीप है, तो आप इनको सेपरेटली राइट करेंगे। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट डू यू मीन बाय रा सिल्क? रा सिल्क से क्या मुराद है? द सिल्क ऑब्टेन फ्रॉम कोकोन इज कॉल्ड रा सिल्क, यानी वो सिल्क मटेरियल जो भी हमने सिर्फ कोकोन से ऑब्टेन किया है, उसको भी हमने ना तो कोई उसकी प्रॉपर कॉम्बिंग की है, ना उसकी हमने प्रॉपर उसको थ्रेड कन्वर्जन की है, उसकी हमने रीलिंग भी नहीं की है, तो उस मटेरियल को हम रा सिल्क कहते हैं, जिसको उसके बाद में प्रॉपर प्रोसेस से गुजारा जाता है ताकि हम फाइन सिल्क फाइबर हासिल कर सकें। नाउ वी हैव टास्क डी. आंसर दीज क्वेश्चंस इन डिटेल. सो टेक अप अ पेंसिल इन योर हैंड. अब हम मार्किंग करेंगे. You have question number 1. Write a short note on a life cycle of silkworm. For that you have to move on page number 27. पेज नंबर 27 पर आप देखेंगे, पेज नंबर 27 पर जहाँ पर येलो लेबल में सिल्क लिखा हुआ है, आप इसके फर्स्ट पैराग्राफ को राइट नहीं करेंगे बल्कि सेकंड से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर लिखा हुआ है द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग इन ग्रुप्स। द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग इन ग्रुप्स, यहाँ से लेकर आप पेज नंबर 28 पर इसको राइट करेंगे प्रोडक्शन ऑफ सिल्क से पहले पहले तक। प्रोडक्शन ऑफ सिल्क से पहले पहले तक टाइम्स इन अ ईयर तक आप इसको राइट करेंगे। एंड सेकेंडली जो फिगर नंबर 3.3 में इसका लाइफ साइकिल है, आप उसको भी राइट करेंगे और इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2. इनैमोरेट अ फ्यू हेल्थ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद सेरिकल्चर। अब सेरिकल्चर से अकॉर्डिंग कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, इसमें आपके पास आ जाएंगे पेज नंबर 30 पे। पेज नंबर 30 में उन्होंने सेरिकल्चर से अकॉर्डिंग पूछा है। इसका मतलब है सिल्क वर्म या सिल्क प्रोडक्शन की जो डिजीज़ हैं उनसे रेलिवेंट है ये। तो उसमें आपके पास यहाँ पर 6 प्रॉब्लम्स दिखाई गई हैं, आप वो 6 की 6 जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3. डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सिल्क प्रोडक्शन इन अ स्टेप वाइज मैनर। अब आपने एक प्रोसेस जो है उसको आपने डिस्क्राइब करना है स्टेप वाइज मैनर में। अब यहाँ पर आपके पास पेज नंबर 28 पे राइट किया हुआ है प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, तो आप प्रोडक्शन ऑफ सिल्क वाला पूरा टॉपिक राइट करेंगे। प्रोडक्शन ऑफ सिल्क से स्टार्ट करेंगे जो ब्लैक हेडिंग में लिखा हुआ है। इसके आगे एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है जिसमें सेरिकल्चर, फिब्रोइन, सेरिसिन को एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद स्टेजेस दिखाई गई हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 तक। तो आप स्टेज नंबर 8 तक राइट करेंगे, यानी पेज नंबर 29 पे आपकी जो पिक्चर है ट्रेज वेयर सिल्क वर्म्स आर रेज्ड, यहाँ से ऊपर तक Finally, the threads are dried and the raw silk is reeled and packed according to the quality. यहाँ तक आप इसको राइट करेंगे। Next is question number 4. Explain in detail the process of converting wool to yarn. For that you have to look at page number 26. पेज नंबर 26 पर आप इसका आंसर राइट करेंगे। पेज नंबर 26 पर आपके पास इसका आंसर है डिटेल प्रोसेस आपने बताना है कन्वर्टिंग वूल टू यार्न। द टेक्निक्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग वूल जहाँ पर लिखा हुआ है ब्लैक हेडिंग में, इसमें आप ये स्टार्ट करेंगे प्रोसेस। सारा का सारा टॉपिक आप राइट करेंगे, शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, कॉम्बिंग एंड मेकिंग यार्न तक। आप इसको आपका जो पर्पल पैच में डू यू नो लिखा हुआ है इससे ऊपर तक आप इसको राइट करेंगे और इसका जो फिगर 3.2 है उसके तमाम तरह स्टेप्स को आप एक्सप्लेन करेंगे। Okay dear students, now you have some homework. Open up your diary, write date, subject, then write down your diary.
डू टास्क डी क्वेश्चन आंसर्स ऑन होमवर्क नोटबुक एंड डू टास्क सी क्वेश्चन आंसर्स ऑन योर साइंस क्लासवर्क नोटबुक। यानी आपका जो टास्क सी के क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपने अपनी क्लासवर्क नोटबुक के ऊपर लिखने हैं साइंस की, और जो टास्क डी के क्वेश्चन आंसर्स हैं इनको आपने अपनी होमवर्क नोटबुक्स के ऊपर राइट करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एंड ऑफ द लेसन। अल्लाह हाफिज़।